તયારીહમ 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 હરિહં 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 આદિનાથ 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 ગુરુદેવ 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 ઓમ ઐં નમઃ 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 ઓમ રીમ નમો નાણસ 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 પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ક્યારે જઈશું જીનવર દેવ હજૂર જો ક્યારે જઈશું જીનવર દેવ હજૂર જો આણા શ્રી જીનવરની શિર પર ધારીને રાણા શ્રી જીનવરની શિર પર ધારીને વિચારશું પર ભાવ દશાથી દૂર જો વિચારશું પર ભાવ દશાથી દૂર જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે મોહ મહામદ છાક મને છકવે ઘણું મોહ મહામદ છાક મને છકવે ગણું ઢાંક્યું જેણે જીવતણું છે ભાન જો ઢાંક્યું જેણે જીવતણું છે ભાન જો દૂર તસે ક્યારે પડદો એ જીવનો દૂર થશે ક્યારે પડતો એ જીવનો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો ક્યારે થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ભવાભિનંદિતા ને ભૂતગલ નંદિતા ભવાભિનંદિતા ને પુદ્ગલ નંદિતા ડોય દશાનો અનારી છે મુજ યોગ જો ડોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી અડગો થાશે ક્યારે એ મહારોગ જો અડગો થાશે ક્યારે મારો જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે આર્ત રૌદ્રનું યુગ્મ અનારી કાળનું આર્ત રૌદ્રનું યુગ્મ અનાદિકાળનું વર્તે છે મુજ આત્મમાં વળભાવ જો વર્તે છે મુજ આત્મમાં વળભાવ જો ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે
પ્રભુ એવો અવસર સૌનો ક્યારે મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. મનુષ્યોને અથવા જીવોને કર્મ બંધનનું કારણ અને કર્મમાંથી મુક્તિનું કારણ, બંનેનું કારણ સેમ એક જ છે. કાર્ય એકદમ વિરુદ્ધ છે. ક્યાં કર્મથી બંધાવાપણું અને ક્યાં કર્મથી છુટકારો, બંને કાર્ય એકદમ વિરુદ્ધ છે, છતાં બંનેનું કારણ પાછું એક જ છે. કયું કારણ? મન એ જ કર્મ બંધનનું પણ કારણ અને કર્મ મુક્તિનું કારણ પણ આ મન છે. માટે સૌથી વધુ ધ્યાન આ મન ઉપર આપવાનું છે. મનવા તું રાવણ અને તું રામ. રાવણ જેવું પણ આપણું મન અને ક્યારેક રામ જેવું પણ આપણું મન થઈ શકે છે. રાવણ જેવું અનાદિકાળથી છે, હવે એને રામ જેવું બનાવવાની જરૂર છે. મન એ જ કૃષ્ણ અને મન એ જ કંસ, મન એ જ શ્રીપાદ અને મન એ જ ધવલ. તો આ મન બહુ વિચિત્ર છે, જેને માટે યોગીરાજ શ્રી આનંદગંજી મહારાજે પણ કહ્યું કે મનડું કિમ હીન પાજે હો કુંથુજીના, મનડું કિમ હીન જીમ જીમ જતન કરીને રાખું, તિમ તિમ અલગું પાજે હો કુંથુજીના, મનડું કિમ હીન. हे भगवान, मेरा मन किसी तरह जानता नहीं है, स्थिर नहीं होता है, तन्मय नहीं होता है, बहुत चंचल है मेरा मन. जैसे जैसे मैं प्रयत्न करता हूँ मन को एकाग्र बनाने के लिए, स्थिर करने के लिए, उतना मन ज्यादा चंचल होके दूर 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 भागता ही रहता है. 70वें कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में आनंदगंज जी महाराज ने करीब 7-8 गाथाओं में मन का अद्भुत विश्लेषण किया है. और उसी की बात चल रही है अभी हमारे प्रभु एवो अवसर क्यारो आवसे, उसकी चौथी गाथा में मेरे मन में हे भगवान अनादि काल से दुर्ध्यान चल रहा है. अधिकांश रूप में तो कौन सा दुर्ध्यान? 2 प्रकार का दुर्ध्यान, आर्त ध्यान एवं रौद्र ध्यान. दोनों के कितने कितने प्रकार? 4 प्रकार. बोलिए जरा आर्त ध्यान के 4 प्रकार का नाम जल्दी बोलिए. सबसे पहला इष्ट वियोग जन्य अर्थ ध्यान, दूसरा अनिष्ट संयोग जन्य अर्थ ध्यान, तीसरा रोग विचार जन्य अर्थ ध्यान और चौथा जन्य अर्थ ध्यान. अब तो आ गया आपको, पहले अभी कठिन लगता था. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. रौद्र ध्यान के भी 4 प्रकार हमने कल सोचे थे. कौन से 4 प्रकार? हिंसा, अनुबंधी, अनुबंध शब्द में जोड़ो, हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, वृषानुबंधी रौद्र ध्यान, शौर्यानुबंधी कस्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान तथा संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान. आर्त ध्यान कौन सी गति का कारण है? तिरिंच गति का कारण है. और रौद्र ध्यान किस गति का कारण है? नरक गति का कारण बनता है. शास्त्रों में एक सुप्रसिद्ध दृष्टांत आता है कि एक छोटा सा मत्स्य, चोखा चावल के दाना कितना होता है, इतना उसका शरीर, लेकिन संगयन उसका पहला वज्र ऋषभ नाराज. और वो छोटा सा मत्स्य चावल को संस्कृत में या मराठी में भी क्या बोलते हैं? तंदुल. बरोबर. तो उस मत्स्य का नाम पड़ गया तंदुलिया मत्स्य. चावल के दाने जितनी जिसकी काया अथवा शरीर, ऐसा वो तंदुलिया मत्स्य अधिकांश समय रहता कहाँ है? बड़े बड़े समुद्रों में विशाल काय, शार्क मछली, वैल मछली, इससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र में होती हैं. शास्त्र में वर्णन आता है. उसकी आँख की जो भ्रमर है ना,
हाँ, उसमें वो तंदुलिया मत्स्य रहता है। जैसे हमारे मस्तक में भी जू लीक वगैरह जंतु होते हैं, उसी प्रकार से बड़ी जो मछली है उसके आंख की भ्रमर में वो तंदुलिया मत्स्य रहता है। और कई बार ऐसा होता है, कभी कभी पशु पंछी भी आराम तो निद्रा तो लेते हैं, तो आहार करके थोड़ा आराम कर रहा है, वो कौन तंदुलिया नहीं, इतना बड़ी मछली जो है, बड़ा मत्स्य। और मनुष्यों में भी कई बार देखा जाता है कि नींद में मुंह थोड़ा खुल जाता है, और इसी प्रकार से वो जो बड़ा मत्स्य है उसका मुंह नींद में खुल जाता है। और पानी के प्रवाह में कितनी छोटी बड़ी मछलियां उनके मुंह में से बिल्कुल ऐसे ही पसार हो जाती, मुंह के पास से बिल्कुल, फिर भी वो नींद में होने के कारण से कुछ भी कर सकता नहीं है। लेकिन यह दृश्य देख करके वह तंदुलिया मत्स्य क्या सोच रहा है, ये कितना आलसी है, सामने चल करके शिकार मुंह के पास आ रहा है, फिर भी कुछ करता नहीं है, आलसी बैठा है, ऐसे सोया रहता है। अगर मैं इसके जगह पे होता ना तो क्या करता, एक भी मछली को जिंदा छोड़ता नहीं, सबको मैं मार डालता, खा जाता। केवल सोचता है, होता तो कुछ नहीं है, काया तो अभी छोटी है। केवल ये मन का जो दुर्ध्यान, हाँ, ये कौन सा ध्यान है, बोलिए, आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है? रौद्र ध्यान। उसके 4 प्रकार में से कौन सा प्रकार है, बोलो बोलो, कौन सा प्रकार है? पहला कौन सा? हिंसानुबंधी, हिंसा करने की विचारधारा चल रही है, सबको मार डालो, सबको खा जाओ, और उसकी आयु कम होती है बहुत। तंदुलिया मत्स्य की समझो करीब अंतर्मूर्त माने बस थोड़ी सेकंड मिनट का, इतनी अल्प आयु में भी ऐसे विचार कर, ऐसे रौद्र ध्यान करने के कारण वो मर करके कहाँ जाता है? नरक में भी कौन सी? लास्ट 7वीं नरक में हो जाता है उत्पन्न। तो ऐसे हम तो कौन जाने कितने दुर्ध्यान करते होंगे, पूरी दुनिया पूरी जिंदगी में कितने प्रकार के दुर्ध्यान किए होंगे, कई बार। क्या होगा सोचिए। अब जो जागे तब से सवार, अब ये किसी प्रकार का दुर्ध्यान हमारे चित्त में न हो, उसके लिए जागृत रहना है। और उसके लिए 4 प्रकार के धर्म ध्यान भी बताए हैं शास्त्रों में, उसका आलंबन हमें लेना है। तो आज 4 प्रकार के धर्म ध्यान का विचार करते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है मालूम है किसी को? हाँ, स्तवन बताया ना साथ में, स्तवन मुनीषु स्वयं भगवान का, जिसमें 4 प्रकार के ध्यान, हर एक का 4 प्रकार वर्णन किया है। आज्ञा, अपाय, विपाक, तिम, संस्थान, विचय, ये 4 धर्म ध्यान वेद 4 दे बहु कर्म ने मार। सुख ध्यानाई ए ध्यान आप जो राज, आप जो राज, सुखदाई ए धर्म मा स्थाप जो राज, स्थाप जो राज, पावन कारी जिन राज जी, प्रभु मुनि सुव्रत नमु भाव थियो राज, भाव थियो राज, पावन कारी जिन। हे भगवान, आज तक तो आर्त और रुद्र ध्यान के 4 प्रकारों से मैंने बहुत कर्म बांध करके दुख सहन किए हैं। अब कृपा करके ये 4 प्रकार जो धर्म ध्यान है, वो मेरे चित्त में आप स्थापित करें। इसमें पहला प्रकार, आज सब में सबके पीछे विचय शब्द जोड़ा है इसमें। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। विचय माने विचार करके निर्णय कर लेना, वो विचय, विचार के द्वारा निर्णय, वो है विचय। तो सबसे पहला प्रकार है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कौन सा बोलो तो? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा माने किसकी आज्ञा? देखिए, हमारे जैन शास्त्र में बहुत महत्व का सूत्र है, धर्म की व्याख्या बताता हूँ। सूत्र कौन सा सूत्र है? आणाए धम्मो। धम्मो माने धर्म, आणाए माने आज्ञा में धर्म है। देव गुरु और शास्त्र की आज्ञा के मुताबिक जीवन जीना, उसमें धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, यह भी सूत्र कई बार बोला जाता है।
लेकिन वो सापेक्ष है, उससे भी बढ़कर सूत्र है अणाय धम्मो। ऐसे अगर देखें ना तो अहिंसा तो जब तक ये शरीर है ना हिंसा, तब तक किसी न किसी प्रकार की हिंसा थोड़ी या ज्यादा चालू ही रहने वाली है कि नहीं। हिंसा के 3 प्रकार बताए हैं, स्वरूप हिंसा, हेतु हिंसा, अनुबंध हिंसा। सबसे कम जिसमें कर्मबंधन होता है वो स्वरूप हिंसा, उससे ज़्यादा होता है हेतु हिंसा में, उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है अनुबंध हिंसा में। सभी हिंसा समान नहीं है। ऐसे तो अभी हमारी हिंसा चालू है कि नहीं है? बोल भाई, अभी चालू है हम सभी की। कैसे? सांस तो चालू है कि नहीं? ध्यान में बैठ जाएंगे, समाधि पे बैठ जाएंगे, जब करते होंगे, ध्यान करते होंगे, तब भी सांस तो चालू रहती है। तो श्वास जो बाहर निकलता है नाक में से गर्म, उससे भी वहाँ के आसपास के जो दूसरे वायु के जीव है उसकी हिंसा हो ही जाती है, उसको हम नहीं रोक पाते हैं। श्वास कितनी समय रोक सकेंगे? कुछ सेकंड फिर तो जब तक ये शरीर है तब तक तो किसी न किसी प्रकार हिंसा चालू है। लेकिन हमारा आशय, हमारा भाव जीव रक्षा करने का हो, कम से कम जीव हिंसा कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की रक्षा कैसा हो, ऐसे परिणाम, ऐसे भाव हमारे चित्त में रहते हैं और उसी प्रकार से हम प्रयत्न करते रहते हैं। फिर भी जो अनिवार्य रूप से जैसे सांस चलता है, बोलते हैं तो भी भले इतना मुंहपुती रखेंगे तो भी यहाँ पर तो वायु का जीव तो है, उसकी हिंसा होने वाली है। भगवान भी जब देशना देते 3-3 घंटे देते हैं, भगवान भी विहार करते हैं तो हाथ चलते होंगे हाथ पाँव, तो वो भी हिंसा तो होती है। लेकिन वो जो हिंसा है वो मोक्ष में बाधा रूप बन सकती नहीं है, उससे कर्मबंध बहुत अल्प होता है। जैना का लक्ष्य होते हुए भी अनिवार्य रूप में जो जीव हिंसा हो ही जाती है उसको स्वरूप हिंसा कहते हैं। बराबर? जिन मंदिर भगवान का जो आप पूजा करते हैं तो शक्य उतना जैना का पालन करना चाहिए। स्नान करना है तो भी मर्यादित जल से, छने हुए पानी से स्नान करना चाहिए। और हो सके तो बाथरूम में स्नान न करते हुए परात जैसा कोई साधन लेकर के उसमें बैठ करके धीरे 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 हो सके उतने कम पानी से 1-2 ग्लास या लोटा पानी, उससे भी पूरा शरीर स्वच्छ हो सकता है अगर आपका लक्ष्य हो तो। और नहीं तो फिर सावर बात में बैठे फव्वारे के नीचे आधा पानी शरीर पे छुए बिना ही नीचे सीधा ऐसे ही गटर में चला जाता है। तो वहाँ जैना का आपका लक्ष्य नहीं हुआ तो वहाँ फिर स्वरूप हिंसा नहीं, हेतु हिंसा। भगवान की पूजा के लिए स्नान कर रहे हैं, बरोबर है, लेकिन फव्वारे के नीचे बैठ के करेंगे सावर बात में तो अधिकांश पानी तो ऐसे ही चला जाएगा गटर में, तो फिर वो स्वरूप हिंसा नहीं, हेतु हिंसा हो जाएगी। ठीक है? और घर से आप निकले हैं मंदिर में आने के लिए, रास्ते में भी चल रहे हैं, नीचे देख करके चल रहे, इरिया समिति का पालन करने की भगवान की आना माने आज्ञा है, उसका लक्ष्य रख करके आप बराबर नीचे देख करके चल रहे हैं ताकि कोई जीव जंतु पाँव के नीचे दब करके मर न जाए। फिर भी कभी ऐसा हो सकता है जब आप पाँव रखने गए देखा कोई जीव उधर नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है बीच में, थोड़ी सेकंड होगा, इतने में साइड में से कोई चींटी या मकोड़ा ऐसे आ गया पाँव के नीचे, दब गया, मर गया, तो जो हिंसा हुई वो कैसी हिंसा कहलाएगी? स्वरूप हिंसा। स्वरूप से तो लिखित से प्राणों का नाश हुआ है, हिंसा तो हुई है, लेकिन उसके पीछे मारने का तो आशय नहीं था, बल्कि जीव रक्षा का ही आशय था। फिर भी अनिवार्य रूप में छद्म दशा के कारण जो हो गई हिंसा तो वो स्वरूप हिंसा है, उसमें कर्मबंधन अल्प होता है। वो आप भाव से क्रियावही करते हैं, एक लोग इसका काय उत्सर्ग करते हैं तो वो कर्म का क्षय उसमें हो जाता है, थोड़ा पश्चाताप होता है, समायासना करते हैं, क्रियावही करते हैं, औषध करते हैं, कर्म का क्षय हो गया। लेकिन सामने दूसरी ओर देखो, दूसरा कोई आदमी वो भी समझो आ रहा है, मंदिर की ओर ही आ रहा है भले, लेकिन जैना का लक्ष्य नहीं, भगवान की आज्ञा का लक्ष्य नहीं है। भगवान ने कहा है कि भाई चलते समय देख करके चलो नीचे ताकि कोई जीव की हिंसा न हो जाए। वो जो क्रिया समिति के पालन रूप जो भगवान की आज्ञा थी उसके पालन का लक्ष्य नहीं था। भले पूजा करने के लिए आ रहा था, भले व्याख्यान श्रवण करने के लिए आ रहा था, लेकिन जीव रक्षा का भगवान की आज्ञा का लक्ष्य नहीं था। फिर भी संजोगवश कोई जीव दबा नहीं, बड़ा जीव कोई चींटी मकोड़ा कोई भी पाँव के नीचे एक भी जीव दबा नहीं है, फिर भी पहले हिंसा में कर्म हुआ था उससे ज्यादा कर्म बंधन जिसमें होगा, इसको कहते हेतु हिंसा। हेतु माने कारण, रीजन। व्हाट इज द रीजन ऑफ वायोलेंस?
प्रमाद, हेतु माने कारण क्या है? प्रमाद। प्रमाद लक्ष्य नहीं था हमारा जीव रक्षा का, तो वो प्रमाद हुआ, बेध्यान हो गया। तो जीव नहीं मरा है, फिर भी स्वरूप हिंसा से इसमें ज्यादा कर्म बंधन होगा। प्रत्येक क्रिया जैना से करना, जैना मैंने यत्ना, सावधानी से, ताकि कोई जीव की हिंसा न हो जाए। चाहे आप रसोई कर रहे हैं किचन के अंदर, वहाँ भी हिंसा कैसे कम हो। कोई भी प्राइमस या चूल्हा या गैस चालू करना है, सुबह सुबह उठे आप, आँख में थोड़ी नींद सिपी पड़ी है, सीधा करके चालू कर दिया लाइटर से हो। देखा नहीं कि अगली शाम को या रात को चाय वगैरह जो भी रसोई किया होगा, थोड़ा उफन गया है चाय या दूध, और वो प्राइमस के ऊपर जम गया, उसके कारण से सैकड़ों हजारों चींटियाँ कई बार उसके ऊपर हो जाती हैं, और बिना देखे फटाक चालू कर देते हैं, तो कितनी एक साथ सैकड़ों हजार चींटियाँ मर जाती है। तो जैना का पालन नहीं हुआ। पहला दृष्टि परिलहन करो, दृष्टि से देखो, उसके बाद प्रवाजनी पहुँचनी जिसको बोलते हैं, चाहे मोर पिचकी हो, चाहे वो उनकी बनी हुई हो, उससे जरा प्रमार्जना कर लीजिए, प्राइमस की या गैस जो भी हो उसको, उसके बाद चालू कीजिएगा। तो वहाँ जीव रक्षा का लक्ष्य है, तो कर्म बंधन कम होगा। तेऊ का है कि जीव से हिंसा तो होती है, रसोई करते हैं, बरोबर है, वो तो अनिवार्य रूपेण है, लेकिन उसका भी टाइम हो जाए काम पूरा, फिर ऐसे ही चाय रख करके मत चले जाओ। रसोई हो गई है, बर्तन उठा लिया है, और फिर कहीं फोन की घंटी बजी है, आप दौड़ के चले गए फोन लेने के लिए, उधर भी फोन का वो चलता रहता है, तो वो हेतु हिंसा में जाएगा, तो स्वरूप हिंसा में नहीं जाएगा। लाइट का भी हिंसा ही। हाँ, आप कभी कभी जैसे भी लाइट का उपयोग करो की जरूरी है किया, पूरा हो जाए तुरंत बंद कर देना चाहिए। किसी फैन माने पंखा चल रहा है वायु का जो, और अग्नि दोनों, और अचानक कोई काम आ चल रहा है, उठ करके चले गए, तो इधर फोगट का ऐसे ही पंखा घूमता ही रहता है फोगट का, वो भी प्रमाद हेतु हिंसा है। ऐसे आपने पानी का बर्तन बाल्टी रखी है नल के नीचे, बाल्टी ओवरफ्लो हो रही है, तो आपके लक्ष्य नहीं है, तो कितना ही पानी बेकार गटर में जा रहा है, तो वो भी हेतु हिंसा का अधिक दोष है स्वरूप हिंसा से। तो जितना अनिवार्य हो उतने कम से कम हिंसा कैसे हो, अधिक से अधिक जीवों की रक्षा कैसे हो, उसका जो लक्ष्य और सावधानी, उसको जयना या यत्ना कहते हैं, और उस भगवान की वो आज्ञा का पालन स्वरूप होने के कारण वो धर्म है। तो आप मर्यादित जल से, छने हुए जल से स्नान करते हैं बर्तन में, और वो जो पानी होता है, चाहे टेरेस हो, आगाशी, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देवे, या आपके घर के आसपास अगर कोई ऐसी धूल वाली जगह है मिट्टी वाली, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक जगह सब नहीं डाल देवे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ताकि जल्दी वो सूख जाए, सोसा जाए। जितना जैना का पालन प्रत्येक क्रिया में, चाहे आपकी सांसारिक व्यावहारिक कोई क्रिया यहाँ हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, सब में जैना 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 जैनाय धम्म जननी, धर्म की माता है जैना, धर्म रूपी पुत्र को जन्म देने वाली माता है जैना, यतना जीव रक्षा, और उसको पालन पोषण करने वाली भी जैना है। धर्म का पालन, धर्म रूपी पुत्र का लालन पालन करने वाली, उसकी पुष्टि और अभिवृद्धि करने वाली भी जैना है। भगवान की मुख्य आज्ञा है, व्यवहारक आज्ञा ये है कि प्रत्येक कार्यों में आप जागरूक रहें, होश में रहें, सावधानी से जैना का पालन करें। निश्चय आज्ञा है, अपने आत्मा में रमणता करें, राग द्वेष न करते हुए अपने भीतर में अपने उपयोग को रखें। यदि 24 घंटों में रख सकें, इसमें हमारी अपनी भूमिका नहीं है, तो बाकी के समय में जो भी क्रिया, चाहे व्यावहारिक सांसारिक हो, रसोई वगैरह करने की हो, व्यापार वगैरह करने की हो, चलने जाने की हो, बोलने की क्रिया हो, भाषा समिति पूर्वक बोलो, किसी को मन दुख न हो ऐसा बोलो, मर्म भेदी वचन मत बोलो, झूठ मत बोलो, शास्त्र विरुद्ध मत बोलो, हित मित और पथ्य बोलो, शास्त्रानुसारी बोलो। तो वो भाषा समिति का पालन करने की भगवान की आज्ञा, बोलने की जरूरत पड़ने तब, जरूरत नहीं है तो मौन रहो, वचन गुप्ती में रहो, और अनिवार्य है बोलना जरूरी है अत्यंत, तो फिर सावधानी से बोलो, वो हुआ भाषा समिति, भगवान की आज्ञा का पालन, तो वो धर्म है। वो बोलते हैं फिर उसमें भी हाँ, हो सके तो मुँह के आगे रुमाल रखो, रख करके बोलो, तो वो भगवान की आज्ञा का पालन रूप धर्म है। ऐसे तीसरी समिति कौन सी है? ऐषणा समिति, खाना पीना है, रसोई बनाना है तो भी जहना पूर्वक बनाओ। ऐसे भी
अनाज है, धान्य, उसको बिना देखे बिना छत कुछ साफ किए सीधा डाल देते हैं घंटी में। छाप का तो मशीन घर में, घर में घंटी आ गई। हाँ, तो उसमें कितने धान्य के जीव धनिया जिसको बोलते हैं होते हैं, बिना देखे बिना छन बिना साफ किए ऐसे डाल देते हैं। तो वो हेतु हिंसा का महान दोष है। अनाज के बिना नहीं चलता है, खाने के बिना नहीं चलता है, तो वो सब करना पड़ता है अनिवार्य रूपेण। लेकिन उसमें भी जितना जीव रक्षा का लक्ष्य रखेंगे उतने अंश में भगवान की आज्ञा के पालन स्वरूप धर्म होगा। तो धर्म है वो 24 घंटे कर सकते हैं। धर्म केवल देराश्रय उपाश्रय में ही हो सकता है ऐसा नहीं है। 24 घंटे आप जहाँ भी हो, घर में हो, बाजार में हो, दुकान में हो, रास्ते में हो, मुसाफिर, हर जगह आप धर्म कर सकते हैं। जैसे सांस हम कहाँ लेते हैं, कब लेते हैं? 24 घंटे चालू। नींद में भी सांस चालू ही रहता है। इसी प्रकार से नींद में भी धर्म की लेशा चालू रहनी चाहिए। किचन में और बाजार में अथवा आप दुकान पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए भगवान की आज्ञा का? नीति, न्याय नीति और प्रामाणिकता से मुझे व्यवसाय करना है, आजीविका कमानी करनी है। उसमें अनिति, अप्रामाणिकता, छल कपट मिलावट वगैरह नहीं करना है मुझे। जितना वो भगवान की आज्ञा का पालन है, प्रामाणिकता नीति का पालन रूप वो करते हैं तो आप धर्म में है उतने समय के लिए। वो लक्ष्य नहीं है। धर्म तो मंदिर उपास्य में ठीक है, बाकी व्यवहार में संसार में दुकान पे थोड़ा धर्म होता है। ऐसी अगर आपकी सोच है तो वो सम्यक नहीं है। हर जगह हर समय में किसी न किसी प्रकार की भगवान की आज्ञा हमारे लिए है। ज्ञानी भगवंतों ने कितनी करुणा की है हमको, कैसे जीवन जीना, व्यवहार में संसार में रहकर भी कैसा जीना, वो भी सारी बातें बताई है। रसोई कैसे करना, घर की सफाई करना, उसमें भी जहना बिंदास देखे बिना फटाफट। दीपावली नजदीक में आती है, घर की सफाई करते हैं। कितने वो क्या बोलते हैं उसको, करोड़िया को क्या बोलते हैं, जाला जाले उनके होते हैं, ऐसे ऐसे झटक देते हैं, फटाफट फेंक करते फटाफट। कितने वो जाले ऐसे ही मर जाते हैं। पहले से उत्पन्न न हो उसके लिए नियमित रूप से योग्य सफाई करो। और उत्पन्न हो भी गए तो जहना पूर्वक उसका निवारण करो। उसके कई उपाय, जहना वर्तन में तो शांति जीवन में। किताब है गुजराती में, जितना वर्तन में जहना होगी उतना जीवन में, अपने जीवन में शांति होगी। दूसरों के शांति में निमित्त बनेंगे तो हमें शांति मिलेगी, और दूसरों के अशांति में हिंसा में निमित्त बनेंगे तो हमें अशांति भुगतनी पड़ेगी। सीधा न्याय है ये तो। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोएंगे बीज वैसा फल पाएंगे, ये तो सब जानते हैं आप लोग। तो प्रत्येक कार्य में जहना रूप धर्म। तो आना ये धम्मो, तो धर्म 24 घंटे भगवान की आज्ञा के पालन स्वरूप हो सकता है। रास्ते में चलते एरिया समिति, बोलते समय भाषा समिति, रसोई करना या खाते पीते समय देशना समिति का पालन की आसक्ति मत रखो। जमीन कर्मी के 22 प्रकार के अभिष्ट अपक्ष्य हैं वो मत खाओ। वो सब जगह भगवान की आज्ञा हर जगह में है। बिन जरूरी चीज़ उसका निकाल करना है, विसर्जन करना है तो पारिष्ठापनिका समिति, जैसे तैसे फेंक मत दो कुछ भी। देखो पहले वहाँ भी कोई जीव जंतु जमीन पे वो मर न जाए, सीधे पहले दृष्टि से देखो, फिर थोड़ा उधर धीरे धीरे उसका पानी है, जूठा पानी है वगैरह है, उसका निकाल भी जहना पूर्वक करो। मल मूत्र वगैरह जो भी हो बिन जरूरी वस्तु उसका निकाल विसर्जन करना है तो यतना पूर्वक करो। और जरूरत नहीं है तो मन वचन काया को स्थिर कर दो, उपयोग भी मत करो। काया स्थिर, वाणी मौन, मन को भी नौकार वगैरह में जोड़ दो, अपनी आत्मा के चिंतन में जोड़ दो। तो 3 गुप्तियाँ हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। 24 घंटे आप गुप्ति में भी रह सके ऐसी हमारी भूमिका नहीं है। तो जितना समय रह सके उतना समय गुप्ति में रहने का लक्ष्य रखो। और बाकी के समय में 5 समितियाँ जो बताई है, चौथी समिति थी आदान निक्षेप समिति, पारिष्ठापनी का 5वीं थी आदान निक्षेप। आदान मैंने ग्रहण, कोई वस्तु को लेनी है, कोई वस्तु को रखनी है, वहाँ भी दृष्टि से देख लो, बिना देखे ऐसे हाथ से लिया तो उसके ऊपर कोई चींटी वगैरह बैठी थी, दब गई, मर गई, देख लो पहले, वहाँ भी देख लो। और फिर उसको उठाया, जहाँ रखना है वहाँ भी देख लो, वहाँ भी। आजकल कितने प्रकार छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं कि नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं, तो देख लो पहले। और अगर हो आपके पास में परमाजनी पौजनी चरवला हो, डांडी हो, हमारा ये जोहरण इसके लिए तो है ये जोहरण। छोटे छोटे जीवों की रक्षा के लिए बैठना हो तो सीधा नहीं आसन बिछाने का, पहले भी जमीन चाहे देख लिया, ऐसे कोई जीव दिखता नहीं है। फिर कितने जीव तो इतने छोटे से बारीक होते हैं तो अपनी आंखों से दिख भी नहीं सकते हैं।
उसी कलर के होते हैं। कई बार नहीं होता वनस्पति में भी उसी ग्रीन कलर के लग रहा है तो उसी के कलर का जीव होता है, दिखता भी नहीं है। इसीलिए आँख से भी देखो फिर भी जरा रजोहरण या चरवला या कुछ न हो तो रुमाल नैपकिन जो उससे परमार्चना करके बैठो। इसी तरह 24 घंटे में जो भी कार्य करते हो, चाहे वो व्यावहारिक हो कि धार्मिक हो, सभी में जयना का पालन करने की जो भगवान की आज्ञा है उसका पालन करेंगे तो आप कहीं भी होंगे, घर में, बाजार में, दुकान में, रास्ते में, तो भी भगवान की आज्ञा का लक्ष्य और पालन पूर्वक जो धर्म है वो आप कर सकते हैं। बराबर रात को सोने से पहले भी सभी जीवों के साथ समायासना कर ली, प्रतिक्रमण वगैरह कर लिया, समायासना कर ली, जो आपस्थान का सेवन हुआ उसका भी समायासना वगैरह कर ली, और फिर नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते करते, आत्मा का चिंतन करते करते आप निद्राधीन होंगे तो निद्रा में भी धर्म की लेशिया चालू रहेगी। इस प्रकार 24 घंटे आप भी कर सकते हैं। हालांकि साधु जीवन में विशेष रूप से धर्म हो सकता है, उतना गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता है। फिर भी जब तक वे नहीं स्वीकार सकते हैं उसकी, तो उसकी भावना रखो ऐसा धन्य दिवस कब आएगा, हर प्रकार के पापों का आजीवन त्याग करते हुए मैं ऐसा पवित्र निर्मल निष्कलंक जीवन जी सकूं, ऐसी भावना तो प्रत्येक मुमुक्षु मोक्षार्थी आत्मा के हृदय में होनी ही चाहिए। भले हम ले नहीं सकते अभी संयम, लेकिन भावना तो प्रबल होनी चाहिए। और जब तक संसार में है तब तक भी जितना उतना आज्ञा विजय धर्म ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आणाए धम्मो, आज्ञा भगवान की, गुरु की, धर्म की। हाँ, लेकिन वर्तमान में भगवान प्रत्यक्ष तो हमारे सामने है ही नहीं। भगवान की आज्ञाएं शास्त्र में जो लिखी हुई है उसको भी ज़्यादा रूप से आप लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं, समय भी नहीं निकालते हैं। इतनी होते हुए गुजराती हिंदी में किताबें वो भी आपने साइड में रख दी है। समय नो टाइम हमारा संसार के लिए बस सब टाइम है, धर्म के लिए ही टाइम का बहाना आता है। नो टाइमिंग, नो रुचि, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जहाँ होता है वहाँ अपने आप समय निकल ही आता है किसी भी प्रकार से। कई बार कल नहीं आए थे मनोज भाई, पूछ सकता हूँ क्या, कहाँ गए, क्या हुआ था? 31 कुछ था? नहीं 31 वगैरह नहीं था। कल हमारे मम्मी पापा और मेरा बेटा वगैरह सब लोग बाहर जा रहे थे 2 दिन के लिए। अच्छा, 31 के हिसाब से नहीं, ठीक है, चलो। 2 दिन के लिए हाँ, छुट्टी थी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है ना, अब किसी को पूछते भाग्यशाली, कल लिखे नहीं प्रवचन में महाराज शायद जरा तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ था तबीयत में जरा सिर दुख रहा था। अच्छा, तब तो फिर आप दुकान पे नहीं गए, ऑफिस पे नहीं गए? अरे महाराज इसके बिना तो कैसे चलता है, वो तो जाना पड़ता है। दुकान जा सकते हैं, वो कटौती कहाँ होती है? जिन मंदिर आने में, पूजा करने में या चिन्हवाणी श्रवण करने में, वहाँ कटौती होती है। संसार के कार्यों में कैसी भी तबीयत हो, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग दवा दो कि मैं ऑफिस, मुझे बुखार आता है, इंजेक्शन ले लो, जो करना हो करो, लेकिन मेरी ऑफिस जाने का बंद नहीं होना चाहिए और दुकान बंद नहीं रखनी है मुझे। उसके अलावा कोई तो वहाँ इंटरेस्ट है, उसका महत्व आपको लगता है पैसे का, इतना भी धर्म का, धर्म रूपी धन जो साथ में चलने वाला है, ये धन तो आपका कितना भी करेंगे सब इधर रहने वाला है। हाँ, जितना ट्रांसफर करेंगे, अभी मौका है। फॉरेन जाना हो तो रुपया नहीं चलेगा, अमेरिका जाना हो तो कौन सी करेंसी होगी, चलेगी? बोलो, वो कहाँ देखते हैं? डॉलर में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो काम आएगा। इसी प्रकार से धन ऐसे तो परलोक में नहीं जा सकेंगे, कितना भी कमाएंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देंगे तो ले जा सकते हैं। किसमें कन्वर्ट करना है? पुण्य में। धन का धर्म में सद्व्यय करने के द्वारा पुण्य में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी परलोक में साथ में चलता है। तो श्रावक किसको कहते हैं? श्राव और क। श्राव माने श्रद्धापूर्वक जिनवाणी का श्रवण करे, और वह माने क्या? वह माने वपन करे, वावणी करे, बोए। वावणी नहीं, वेड़ा छे, वावी लो भाई, वावी लो। बार बार वो तो सामने से मौका देखता है, श्रावक सच्चा श्रावक होता है ना। कहीं मौका है धर्म का, वपन वावणी बोआ बोने का, धर्म के बीच का, धन को बोने का। इन शास्त्र में ऐसे 1-2 नहीं, कितने खेत बताए हैं जिसमें धन उगता है। 1 रुपया आप बोएंगे, 100 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रुपये उससे हो जाएंगे। मालूम? ऐसे खेत या वाड़ी या बगीचा, गार्डन ऐसे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, कितने हैं?
सात खेत या बाड़ी ऐसे बताए गए हैं जिसमें धन को बोने से कई लाखों करोड़ों गुना होकर के वापिस मिल सकता है। हालांकि अपने को वो भी अपेक्षा नहीं रखनी है कि वापिस मिले, हमको तो ये अपेक्षा रखनी है कि इसके प्रति ममत्व मूर्छा हमेशा के लिए उतर जाए। हम कब अनगार बने, 1 रुपये के बिना पूरी जिंदगी चलती है, ऐसा हम कब बनेंगे, वो भावना रखनी है। कौन से 7 खेतर हैं? 7 खेत कौन से है? जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन आगम माने सम्यक ज्ञान, साधु साधी भैया और श्रावक श्राविका। तो आपको मौका है अभी धन को बोने का, ठीक है। साधु साधी की वही आवाज में होती है, तपस्वी भी है, अमीर वाले भी हैं, श्रावक श्राविका वगैरह, सबके भक्ति का उसमें धन बोने का समय है। आप लोगों ने कितना किसने लाभ लिया है, तो अभी बाकी होंगे तो सोच लेना, और लिया है तो एक दाना बोया है तो दूसरा दाना भी बो सकते हैं, ठीक है ना। एक नाम लिखा है तो 2-3 भी कर सकते हैं। चलो, तो क्या बात चल रही है अपनी? धर्म रूपी धन से भी धर्म की मूल्य अनेक गुना ज्यादा, अनंत गुना है वास्तव में। वो अभी समझ में जितना चाहिए उतना बैठा नहीं है, इसीलिए धन कमाने को नहीं छोड़ते हैं और धर्म को कभी छोड़ देते हैं। जबकि भगवान ने तो ये कहा है, धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों को यथा योग्य रूप से न्याय देना चाहिए। अगर आप संसार में बैठे हैं, गृहस्थ हैं, तो आप केवल धर्म नहीं कर सकेंगे, कुटुंब का पालन पोषण करने के अर्थोपार्जन भी करना पड़ेगा। संसार में बैठे हैं तो विषय शादी की हुई है तो वो भी करना पड़ेगा सब, लेकिन और धर्म को मुख्य रख के करना है। तीनों में से कभी ऐसा कोई समय आ जाए, संजोग ऐसे हो कि तीनों का ठीक से पालन, किसी को गौण करना पड़ता है, किसको घर गौण करना है, अर्थ और काम को गौण करना है, धर्म को गौण नहीं करना। धर्म को हमेशा प्रधान रखना है, क्योंकि महर्षि व्यास ने भी कहा है, धर्मार्थ ऊर्ध्वबाहुर विरौम्येश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। अरे हाथ ऊंचा ऊंचा करके चिल्ला के मैं जोर जोर से कितना बोल रहा हूँ। ऊर्ध्वबाहु माने हाथ ऊंचा के प्रसन्न रधर की तरह, विरौमी माने जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। क्या कि धर्मात् अर्थश्च कसी सुनोती में, फिर भी लोग कोई सुनते नहीं, इतना चिल्ला के मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, कोई सुनते नहीं है। तो क्या कहते हैं कि भाई धर्मात् अर्थश्च कामश्च, आपको अर्थ माने पैसा चाहिए, काम माने विषयों का उपभोग करना चाहिए, वो चाहिए, उसकी सामग्री चाहिए। उसका मूल कारण क्या है? धर्म है। धर्म जनित जो पुण्य है, इसी से अर्थ और काम मिले, उसकी सामग्री मिलेगी। पुण्य नहीं होगा तो बेचारे मजदूर कितना मेहनत करते हैं, मुश्किल से पेट गुजारा होता है, और वो गधे बेचारे डोंकी कितना बाहर वहन करते हैं, ऊपर से मार मिलता है। और धर्मजनित पुण्य का उदय होता है। आप जैसे कोई बैठे हैं दुकान में, गद्दी पे, ऑफिस में, हलो रोज का लाखों रुपया, बारिश होती है कभी नहीं, टाटा बिरला अंबानी वगैरह और भी कई सृष्टि वाले हैं सब। तो वो मूल कारण मेहनत आप मेहनत कम करते ज़्यादा कमाते हैं, और मजदूर और बेचारे गद्दे वगैरह कितना परिश्रम करते हुए भी मुश्किल से पेट गुजारा होता है, ऊपर से मार खाना पड़ता है, माल नहीं मिलता, मार मिलता है। तो पुण्य और पाप का उदय, उसका सब खेल है। तो धर्मात् अर्थश्च कामश्च, अर्थ और काम भी धर्म रूपी बीज से ही उत्पन्न होते हैं। स किमर्थम न सेवते, तो फिर उस धर्म का सेवन आप क्यों इतने चाव से लगाव से नहीं करते हैं? जैसे पेट उतारना ऐसे करते हैं। धन कमाने में कितना रस होता है, सीजन आता है तब खाना पीना आराम हो जाता है। धर्म करते हैं, मर के करते हैं, धन कमा हंस के करते हैं। प्रभु तने प्रसन्न ते केम थाए, तारा दिल नु कपट न विजाए। बे पैसा नी गुरु सेवा बतावे, त्या घण तू बोले, पण घरनी स्त्री जारे मागे घरेणु, त्या तो हसी मगन थई डोले। प्रभु तने प्रसन्न ते केम थाए, तारा दिल नु कपट न विजाए। ऐसी अच्छी कविताएं पहले के काल में आती थी, अभी धीरे धीरे वो सब नाम शेष होती जा रही हैं। भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न कैसे हो? तेरे दिल में जो कपट पड़ा है वो जाता नहीं है।
गुरु समझो 2 पैसे का कुछ काम बताते हैं, जरा कोई धर्म का काम, उसमें सब धर्म का सर्वे करने का, तो कितना बहाना निकालता है, महाराज साहब अनुकूल नहीं है, ऐसा है वैसा है, अभी मनी चल रही है, ये हो, अभी शादी में खर्च हो गया, उधर खर्च हो गया। अरे कितना भी हो, हाँ, आपको अगर कोई संसार का कार्य करना है तो बैंक से लोन लेकर के भी आप करते कि नहीं करते, समय पर, समय आने पर शादी की प्रसंग आ गया है और पैसे की बहुत कमी है, उधार उछीना लेकर के भी आप वो प्रसंग अच्छी उसमें कर से भी नहीं करते हैं। जलसा दुनिया को दिखाना है, जलसा से करते हैं। धर्म की बात आती है तो 1000 बहाने निकालते हैं। घरनी स्त्री जारे मांगे घरेणु, आपका लाइफ पार्टनर जिसके प्रति आपको बहुत लगाव है, वो कहती है देखो पड़ोसी के पास वो कहना आया है, मुझे भी चाहिए, जरूर जरूर ला के दूंगा, और मानो पैसा नहीं है तो बैंक में से लोन लेकर के भी उसको खुश करेंगे। स्वार्थ है वहां पर, और परमार्थ में खर्च करना हो तो 1000 बहाना निकलता है। ऐसी स्थिति हो तो प्रभु की कृपा के पात्र तुम कैसे बन पाओगे? प्रभु की कृपा तो बरसती ही है, फिर भी उसको तो झेल नहीं पाओगे, ऐसा कपट पड़ा होगा तो। ठीक है, तो अपनी बात चल रही है आज्ञा विषय धर्म ध्यान के प्रभु की आज्ञा, इसका महत्व समझना है। बीमार हैं आप लोग, हाँ, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कैंसर मानो हुआ है, भयंकर पीड़ा हो रही है, क्या कहेंगे डॉक्टर को? डॉक्टर साहब जो करना हो सो करो, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा रोग, ये मेरी पीड़ा मीठा लो, ठीक है ना। वहाँ नहीं कहते कि मैं ये होम्योपैथी मीठी मीठी गोली लो, फिनाइन हो, कितना भी कड़वा औषध हो, वो भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंजेक्शन तक लेने के लिए, अरे ऑपरेशन करवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं ना, क्योंकि वो बीमारी खटकती है। इतना भी ये भव रोग है, मोह का रोग है, राग द्वेष का महारोग है, मिथ्यात्व का महारोग है, उतना अभी हमने खटकता नहीं है, उसको प्रूफ हो गए हैं, दुख प्रूफ हो गए हैं। इसीलिए औषध रूप जो धर्म ध्यान है उसके प्रति उतना लगाव नहीं है अभी। आज्ञा विचय, डॉक्टर भाई जो कहेगा तो कर मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं? डॉक्टर कहेगा भी आपको खट्टा नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना है, मिष्ठान नहीं खाना है, डायबिटीज है, दूसरा कोई प्रॉब्लम है, आपको मुंह के पानी ऊपर रहना है, कहती डॉक्टर साहब मन से गमन से भी माननी ही पड़ेगी बात। महाराज साहब कहते हैं अमिल का समय अमिल करो भाई, ऐसा अभी अनुकूलता नहीं है, ये स्थिति हमारी है। आज्ञा, भगवान की आज्ञा के प्रति जितना चाहिए इतना प्रेम नहीं जगा। आज्ञा से ही कल्याण है, आज्ञा ही भगवान की वास्तविक पूजा है। कोई लड़का है अपने माँ बाप को सुबह शाम पाँव छू करके प्रणाम करता है, लेकिन माँ बाप अगर कोई काम बताते हैं, कोई आज्ञा करते कि बेटा जरा वो पानी का प्लास मुझे पानी भर के लाओ, ले लो, अब अगर अपने कंधे ऊंचे करता है, मैं क्यों, आपके पाँव नहीं है, आप पी लो, ऐसा बोलता है तो वो पितृभक्त कहलाएगा। माता पिता का भक्त भले 2 टाइम पाँव छूता है, लेकिन आज्ञा का समय आता है पालन करने का, तब अगर ना बोल देता है, बहाने निकालता है, तो वो सच्चा माता पिता का भक्त नहीं है। इसी प्रकार से भक्त शास्त्रकार कहते हैं कोई 3 काल पूजा करता हो, भगवान की त्रिकाल पूजा करने की बात है ना, सुबह में धूप दीप वगैरह से अष्ट प्रकारी पूजा वास्तव में दोपहर को है, फिर शाम को वापिस आरती मंगल दीपक वगैरह के रूप में है, देववंदन भी निकाल कर सकते हैं। तो तीनों काल भगवान की भक्ति करना है। शरीर के लिए 3 टाइम कम से कम मिनिमम, बराबर, सुबह दोपहर शाम, बाकी बीच बीच में जो एक्स्ट्रा चलता है वो तो एक्स्ट्रा, वो तो 13 बार भी हो जाता है। मिनिमम 3 बार इसको जब देते हैं भाड़ा, तो फिर आत्मा के गुणों की पुष्टि के लिए भक्ति भी त्रिकाल करनी चाहिए, त्रिकाल वंदना, त्रिकाल भक्ति करनी है। कुमारपाल महाराजा जैसे 18 देश के अधिपति, कितनी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, फिर भी वो त्रिकाल जिन पूजा करते थे, बड़े भाव से, अकेले नहीं करते थे, उनके साथ कितने सब श्रेष्ठी वर्य साथ में चलते थे, पूजा के सामान सामग्री लेकर के गाजे बाजे के साथ भगवान की जय जयकार और नारे लगाते हुए जाते थे, और भगवान की घंटों तक भाव से पूजा करते थे। तभी तो भावी 24 में गणधर होकर के मोक्ष में जाने वाले, पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी के गणधर बन करके कुमारपाल महाराजा मोक्ष में जाने वाले हैं। तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान, भगवान की आज्ञा के प्रति अहोभाव होना चाहिए।
आना खंडनकारी, भगवान की आज्ञा का जो खंडन करता है। जय ही तिकालम, इनका महाविभू ये बड़े ठाठ मार विभूति से ईश्वर से ठाठ मार से हुए वीय रागम वितरा की पूजा करता है। सबम्पी निरर्थयम तस्सा, वो सब उसका निरर्थक है, निष्फल है, बेकार है। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करने का लक्ष्य नहीं है, बिंदास कैसे भी जीता है, पूजा कर ली बस हो गया। बाकी व्यवहार में संसार में थोड़ा धर्म होता है तो वो करने जाएंगे, थोड़ा जीवन जी पाएंगे। ऐसी जिसकी गलत सोच है तो उसकी वो पूजा का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। पूजा नहीं छोड़नी है, ये हमारी गलत सोच को सुधारना है। ठीक है, 24 घंटे भगवान, अभी मेरे लिए भगवान की क्या आज्ञा, कदम कदम के सोचना है। चलते फिरते गाते पीते सोते, अभी आप जिन वाणी श्रवण कर रहे हैं उसमें भी भगवान की कुछ आज्ञा है। क्या आज्ञा है बोलो, मालूम नहीं होगा। जिन वाणी कितने एकाग्रता से और रसपूर्वक सुननी चाहिए, उसके लिए समकित सरस्वती की सज्जाए में सुंदर उपमा दी गई है। मैंने कल ही किसी को मैंने समझा रहा था, तरुण सुखी स्त्री परिवर्यो जीरे, चतुर सुणे सुर गीत, तेथी रागे अति गणे जीरे, धर्म सुण्यानी रीत रे प्राणी रे, धरिए समकीतरम। आता है किसी को? वासना में आप पाइए। हाँ, लेकिन उस समय तो होते नहीं आप लोग। क्या हुआ, शुरुआत में कुछ आते थे, धीरे धीरे क्या हो गया, आध्यात्मिक वासना, संसार की बातें जिसमें आती हो, बस पैसा कैसे कमाना हो तो ठीक है। अरे थोड़ी कठिन भी लगती हो तो भी सुनो, एक बार दो बार तीन बार 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 सुनेंगे तो धीरे 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 फिर सब समझ में आता जाएगा। स्कूल में गए पढ़ने के लिए, सब समझ में आगे आ जाता था क्या? नहीं भी आता तो भी नियमित जाते हैं। आप दुकान खोलते हैं जवाहरात की तो क्या भीड़ लगती है वहाँ पर, लाइन लगती है क्या? जैसे शाक बाजार में लाइन लगती है, भीड़ लगती है, ऐसे जवाहरात की दुकान में थोड़ी लाइन लगती होगी। घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गया है, कभी कोई ग्राहक आया नहीं भी आया तो भी आप दुकान चालू ही रखते हैं, बंद करके घरे नहीं चले आते कि क्या करें, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। दिन भर में एक भी ग्राहक आएगा तो भी आपका दिन सफल हो जाएगा ना, ऐसा मानते हैं। तो इसी प्रकार से धर्म श्रवण करते हैं, इसमें कोई बात समझ में आती है नहीं आती है, कम आती है तो पूछो। पूछने का छूट आपको कहा है मैंने, छूटो, 1 बार 2 बार 3 बार भी पूछो तो आप चित्रवत ऐसे स्थिर बस बैठे हैं, पूछो, पूछना बीच में जो विषय चल रहा है उसके अनुरूप कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। स्वाध्याय के 5 प्रकार में एक प्रकार पृच्छना भी है। स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुपेक्षा और धर्म ध्यान, शब्द तो आते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। पृच्छना कहा है स्वाध्याय का प्रकार, तो पूछो ना भाई, पूछेंगे तो कुछ माल मिलेगा। अर्जुन ने कितना पूछा, कितने प्रश्न किए तो भगवद गीता का रचना हुई ना। बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा, वो भी ऐसे जब माँ के आंचल से दूध निकालता फिर बीच बीच में अपना सिर है ना माँ को मारता जाता है। खोदेंगे तो माल निकलेगा, पूछेंगे तो कुछ माल मिलेगा या। इसीलिए पूछने में हिचकिचाहट मत रखिए, संकोच मत रखिए, पूछिए, बिंदास पूछिए। कई बार छोटे बच्चे इतने ऐसे अच्छे प्रश्न पूछते हैं शिविरों में कि हम भी चकित हो जाते हैं। आजकल के इनका IQ कितना जोरदार है, बुद्धि का आँख कितना जोरदार है आजकल के बच्चों का। तो क्या बात चल रही है? आज्ञा, विजय, धर्म, ध्यान। गौतम स्वामी जैसे भी भगवान को कितने प्रश्न पूछते थे, दूसरों को बोध हो इसके लिए भी पूछना चाहिए। धर्म श्रवण की रीत, वो बात अपनी चल रही है ना, भगवान की आज्ञा हर विषय में है। कदम कदम के सोचना चाहिए। आप, मैं स्नान कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, भगवान के लिए भी क्या, मेरे प्रभु की आज्ञा क्या है, उसका जो निरंतर चिंतन चलता है वो आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है। प्रत्येक कार्य में मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है, गुरु महाराज की क्या आज्ञा है, शास्त्र की क्या आज्ञा है, मुझे उसके मुताबिक जीवन जीना है। इस प्रकार से निरंतर भगवान की आज्ञा का विचार करना, वो आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान का सबसे प्रथम प्रकार है, बहुत महत्व का प्रकार है। तो तरुण माने कोई युवान, नवयुवान है, 25 साल की उम्र उसकी है, सुखी, हर प्रकार से सुखी है, अरबोपति खरबोपति बाप का इकलौता बेटा है, इकलौता वारसदार है। और तरुण सुखी स्त्री परिवार हो जी, उसकी शादी अभी अभी हुई है, कुछ दिन ही हुए हैं समझ लो, पर वो भी सुखी है,
वो भी अरबोपति उद्योगपति, बाप की इकलौती बेटी है, गुणवान है, रूपवान है, शीलवान है और पतिव्रता है। ऐसी नवविवाहिता पत्नी के साथ बैठ करके, एयर कंडीशन थिएटर में बैठ करके, बॉक्स बॉक्स में बैठ करके, चतुर सोने सुर की चतुर है, दोनों चतुर हैं, संगीत कला गीत कला का मर्म समझने वाले हैं। पहले के आगे संगीत का कुछ महत्व नहीं है, समझदार है। संगीत में कितने राग है, अभी कौन सा राग चल रहा है, कौन सा ताल चल रहा है, कौन सा, वो सब जानते हैं, चतुर है। और वो सुने श्रवण कर रहे हैं। क्या श्रवण कर रहे हैं दोनों? सुर गीत। सुर माने देवता, देव गांधर्व देवों के गीत संगीत को सुन रहे हैं। आजकल के ऑर्केस्ट्रा तो उसके किसी कुछ नहीं है, देवता ही संगीत के आगे तो पानी भरे। तो कितने एकाग्रता से श्रवण करेंगे, कितने रस से श्रवण करेंगे। उस वक्त उसको कोई उद्योग जाएगा ध्यान, कोई आएगा उतर आएगा, कहीं ध्यान नहीं आएगा, उसमें एकदम तन्मय हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे। ठीक है। तेथी रागे अति गणे जी धर्म सुनियानी, उससे भी ज्यादा राग माने रस, रुचि, प्रीति पूर्व धर्म श्रवण मोक्षार्थी आत्मा को करना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है। इधर कौन आया? इधर जरा से कोई आवाज आएगी, इधर उधर आंखें भी जाएंगी, मन भी जाएगा। नहीं, जैसे सांप वो मदारी बीन बजाता है और सांप कैसे डोलता रहता तन्मय होकर के, ऐसे रस से रुचि से धर्म का श्रवण करना चाहिए। अनंत जन्म मरण को मिटा देवे, उसकी औषधि जब बताई जा रही होती है तो कितना रस पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारी कमी है, उस ख्याल में होनी चाहिए कि भगवान की आज्ञा तो ऐसी है, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है, इतना बहिर्मुख है, इतनी एकाग्रता से अभी मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँ मैं। हो सके तो हाथ जोड़कर गौतम स्वामी कैसे सुनते मालूम है भगवान की देशना? ऐसे पालथी मार करके बैठ करके नहीं, उबड़क बैठ करके और हाथ ऐसे जोड़ करके, अंजलि जोड़ करके, और भगवान जो जो बोलते हैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोलते हैं शैवम बनते भगवान आप कहते बिल्कुल वही बराबर है, आप जो कहते बिल्कुल सही है। पहले के जमाने में जी प्रवचन के बीच में जी बोलते थे ना, आपको मालूम होगा, हमारे बुजुर्ग थे, वडील थे, शिकार बोलते हैं, वो बहुमान एक प्रकार का आदर है और आप जागृत हैं उसका भी प्रतीक है। तो बीच बीच में कहीं नींद में चले जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक महाराष्ट्र का व्याख्यान चल रहा था और ऊपर से ऐसा नहीं था, बीच बीच में खंभे बहुत होते थे पहले के ज़माने में। तो एक सेठ आकर के आगे बैठते थे खंबा का आलम्बन लेकर के, और थोड़ी देर में समाधि लग जाती थी। इससे साधक थे, समाधि थे। तो ऐसा हुआ, सामने जो बैठा है वो ही अगर नींद ले तो पट्टा को भी इतना अच्छा नहीं लगेगा बोलने में भी। इसीलिए मारा शरण का सेठ સાંભળો છો કે? नहीं सोते हो क्या? ना ना महाराज कौन कहता है, जाग रहा हूँ। आधी नींद तो थी उसकी, एकदम भले नहीं सो रहे थे लेकिन सो तो रहे थे थोड़ा थोड़ा। महाराज साहब ने पूछा क्या सेठ जी सो रहे हो, नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं महाराज कौन कहता है। 2 बार 3 बार फिर भी वे बोलते हैं और फिर 2-4 मिनट हुई गई, फिर वापिस वो झूलना शुरू हो जाता है पालने में। तो 2-3 बार पूछा, वही जवाब। सबको हुआ, मुझे मैं देख रहा हूँ सो रहा है, फिर भी बोल रहा है नहीं महाराज मुझे भी झूठा साबित कर रहा है। ठीक है, अभी उपाय करना पड़ेगा कुछ। तो चौथी बार जब वो झपकी लेने लगे तो हमारे सामने क्या पूछा मालूम है ना आपको? कितने को मालूम है? क्या सेठ जीवो छो के? क्या सेठ आप जीते हैं क्या? जिंदा है क्या? नहीं नहीं महाराज कौन कहता है? तो सब हंस पड़े। महाराज साहब क्या जिंदा है क्या? वो कहता नहीं नहीं महाराज मैंने मरा हुआ हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, रस नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए तो वक्ताओं को कभी कभी ऐसे जॉक्स बीच में जोड़ने पड़ते हैं। हाँ, नहीं तो कहते हैं अगर ऊपर हो जाता है, बोलते हैं कि कठिन लगता है। अरे कितने कितने दृष्टांत देते हैं, 3-4-5 दृष्टांत हर रोज आ जाते हैं। हाँ, कोई शब्द नए होते हैं, शास्त्री तो सुनेंगे पहली बार तो नया लगेगा ही। जब भी कोई क्लास में जाते हैं तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है शुरू में तो नया नया, साइंस में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी जो परिभाषा होती है शुरू में तो नई बिल्कुल नई लगती है, फिर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये आर्तरोग दृष्टांत तो सुना होगा, लेकिन ये इसके 4 जो पेटा प्रकार है वो आपके लिए थोड़ा नया होगा किसी के लिए। ठीक है ना? तो पता है इसमें क्या, इसमें ऐसा नहीं सोचता हो तो बहुत कठिन है। हमारा हृदय कितना कठिन है वो नहीं देखते हैं।
कितना भी फायरिंग करो भी प्रवचन प्रूफ हो जाते हैं। आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना नेता लोग, इसी प्रकार से प्रवचन प्रूफ हो जाते हैं कई बार। वहाँ जरा सॉफ्टनेस रखो। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान, कैसी आज्ञा पालन होना चाहिए? जैसे कोई सेनाधिपति है, हुक्म करता है आगे कुछ, फिर कुछ भी हो, सम्राट सिकंदर ऑर्डर देता है पहाड़ है तो पहाड़ क्यों आगे, दलील मत करो आगे तो पहाड़ है कैसे चले, रास्ता तो है नहीं, ऑर्डर माने ऑर्डर। व्यवहार में भी ऐसी आज्ञा पालन अपेक्षित है सैनिकों के लिए। लेफ्ट राइट, किसी का पाँव आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल लाइनबद्ध होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। उसी प्रकार से जब तक आज्ञा नहीं होती है तब तक कुछ नहीं करना, फायरिंग नहीं करना। भले सामने वाले फायरिंग कर रहे हैं, आज्ञा इधर से होगी तभी करेंगे, नहीं तो मर जाना बेहतर है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। आज्ञा का इतना महत्व है, तो धर्म में तो सबसे ज्यादा महत्व है आज्ञा पालन का। गुरु ने कहा शिष्य को, बेटा देखो वो सांप है ना, उसके दांत गिन के आओ। कहीं जा रहे थे विहार करते हुए, सामने रोड के एक साइड में एक सांप का दर्द बिन था, और एक सांप उसमें बाहर निकल कर ऐसे फन चढ़ा के बैठा है, नाग कोबरा जहरीला। और गुरु ने कहा बेटा उसके जरा दांत गिन के आओ। अब क्या बोलेंगे आप? हम होते तो उसकी जगह पे, अरे गुरु महाराज साठी बुद्धि नाठी, क्या मुझे मार डालना है? इतना मैं अप्रिय आपको लगता हूँ कि आप ऐसी आज्ञा मुझे कर रहे हैं? लेकिन कैसे वो समर्पित शिष्य होंगे, आज्ञा पालक, तहती कोई दूसरा दलील नहीं, विकल्प नहीं, सीधा जाता है शिष्य। अब दांत खींचना है तो जरा मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, तो थोड़ा झुकना पड़ता है। तो जैसे छेड़ा झुकने गया, आप आए तो खूब करता है, ऐसा झटका लगा। गुरु कहते बेटा बस अब वापिस लौट चले आओ, आ गया। आपको होगा तो पहले भेजा क्यों? दांत तो गिना नहीं है, अभी वापिस बुला रहे थे। क्या गुरु को मालूम नहीं था कि वो दांत गिनने जाएगा तो वो खुदकार करने वाला है, डंक भी लग सकता है, मर भी जा सकता है, फिर भी आज्ञा करते हैं ऐसी? नहीं। फायदा क्या हो गया मालूम है? क्या मालूम क्या फायदा हुआ शिष्य को? कितने सालों से उसकी जो कमर है ना, इसका मणका जो बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी का, वो कुछ टेढ़ा, मणका टेढ़ा हो गया, वो ठीक नहीं था। ऐसे अचानक ऐसे हुआ, झटका लगा तो ठीक हो गया, फायदा हो गया। मानो की तो बड़ा रिस्क है, रिस्क की बात है। डंक लग गया होगा तो, जहर चढ़ गया और मर गया होता तो भी उसकी सदगति ही होगी। उसको इससे भी ज़्यादा बढ़िया गुरु मिलेंगे, भगवान जगत गुरु परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा का इतना पालन किया, ऐसी स्थिति में भी पालन किया बिना विकल्प से। उधर वनस्पति उससे वो तो गुरु भी होते हैं समझदार, भले वो मंत्र जानते हैं, कुछ भी करके जहर उतार भी सकते हैं। फिर भी मानो नहीं भी जहर उतरा, मर भी गया, तो भी उसकी तो सदगति होगी। उससे अच्छे भगवान परम गुरु भी भगवान पे मिल सकेंगे। इतनी आज्ञा का पालन का महत्व है। और भी कई उदाहरण हैं आज्ञा पालन के महत्ता को दिखाने वाले, वो अग्रे वर्तमान, बरोबर। अभी और 3 प्रकार बाकी हैं धर्म ध्यान के। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी, जिनाज्ञा आज्ञा देखो, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो छद्मदशा के कारण तो हार्दिक इच्छामि दुक्कडम। मोदे सागर